Hello everyone, very good evening. Please let me know if you guys are able to hear me clear and loud. Please put that into the chat अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं. Are we live? I'll just wait for a few minutes for you to confirm me if we are live, guys. नीचे जाने से परेशान हो might be experiencing the classic same pattern. Hello everyone, can you guys put that into the chat? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ and you guys can hear me clear and loud? Put that into the chat. Perfect. So as I can see that I'm live और आप लोग मुझे clearly देख पा रहे हो, आप मुझे सुन पा रहे हो. Hello everyone, very good evening everyone. Thank you for joining us live today. And जो लोग इसको बाद में recording देखेंगे, hello to all those people as well. So in the modern world, if I go and talk about one tech skills which gets you the maximum job opportunity today in the market, that is called as full stack development. है ना? हमने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखा है, हमारे कई सारे कोर्सेज भी फुल स्टैक डेवलपमेंट के अराउंड है. Today we thought of why not make this special. See, at the end of a day, it's a new year, right? And many of us, almost every one of us who would like to make it big in the IT industry, would like to get some jobs in some good companies of this world. आप एक अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहते हो, आप अपने घर वालों को प्राउड फील कराना चाहते हो. आप में से कई लोगों का ये एम्बिशन होगा कि मैं पूरे दुनिया घूमूं. आई मूव टू द यूएस, वहां पे जाके बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम करूं. मैं एक अच्छा जीवन खुद के लिए और अपने परिवार वालों के लिए लेके आऊं. मैं एक ऐसा स्किल सीखूं जिससे कि आई कैन मेक माई सेल्फ एंड माई पेरेंट्स प्राउड. इन सारी चीजों को आंसर करने के लिए, इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट द ट्रांजिशन कि कैसे आप एक नॉन टेक वाले ब्रांच से आप एक किसी टेक की बड़ी कंपनी में महारत हासिल कर सकते हो, कैसे आप इंडिया से स्टार्ट करके दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज यूएस में जाके यूके में जाके काम कर सकते हो, कैसे आप आज के रेलिवेंट टेक स्किल्स मर्न स्टैक को सीख कर यू कैन मेक इट बिग इन द आईटी सेक्टर. ये सारी चीजों के बारे में बातें करेंगे. और उसके लिए टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विथ यू पीपल. We have someone who is an industry veteran who has been working in the industry for more than close to 30 plus years now. He has worked in multiple companies. He has his own story जहां पे उन्होंने खुद को ट्रांजिशन करा है फ्रॉम अ नॉन सीएस ब्रांचेस लाइक मेटालर्जी माइनिंग. इस ब्रांच से खुद को आज एक टॉप कंपनी में इंजीनियरिंग पोजीशन पे एज अ मैनेजर पोजीशन एज अ लीडर पोजीशन वो काम कर रहे हैं. उन्होंने खुद को इंडिया के अलग अलग कंपनीज में काम करके खुद को यूएस में आज स्टेब्लिश किया हुआ है. सो प्लीज गाइस हेल्प मी वेलकम राहुल विथ मी टुडे. राहुल, please welcome Rahul. I on behalf of everyone who is watching this, many of the people are live right now. थोड़ा लेट है. इस वीडियो को जो भी हम कन्वर्सेशन करेंगे काफी सारे लोग इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट्स में ढूंढेंगे. बट आई थिंक यू आर द मैन ऑफ द आवर, राइट? यहाँ पे हमारी जो जनता है वो ऐसे हैं जो शायद कंप्यूटर साइंस से नहीं है बट वो आईटी सेक्टर में अच्छा नाम करना चाहते हैं. हमें से हजारों लोग ऐसे हैं जो यूएस जाके वी वांट टू सी द वर्ल्ड, राइट? So I believe you have done this with perfection with last so many years. So before we go and deep dive about each of your experiences and we talk more around की full stack development क्या है, क्यों relevant है, I would like you to quickly introduce yourself. आप एक बार सबको, हमारे स्टूडेंट्स जो अभी देख रहे हैं उनके लिए और जो उसको बाद में रिकॉर्डिंग्स में देखेंगे उनके लिए, you just introduce yourself and so that we have some context set. और उसके बाद एक एक चीजें, I have all things planned out कि मैं आपसे क्या क्या पूछने वाला हूँ. We'll talk about all of that. So Rahul, all yours. Awesome. First of all, good morning, good evening, everyone, wherever you're located. Also, Happy New Year. Naya saal hai. I wish you a lot of success and everything that you do. I'm excited to be here. Looking forward to the conversation. So thanks for inviting me. It's a good opportunity. Quick introduction. So right now, I am an engineering manager who is managing multiple teams at a firm called PayPal. Before PayPal, I worked with Goldman Sachs, and before that, I worked with Oracle. So I have roughly about 13 years of experience, as Vishwa mentioned. Right now, the teams that I manage, they work largely on full stack, but I have had experience working myself directly on technologies like big data, backend, bit of MLAI. So I think I've traversed the whole landscape. And right now, for last 3 or 4 years, I'm doing full stack in a lot of detail.
with PayPal and some of the other teams. Awesome. Yeah, Very so that's nice. quick about me. Awesome. So awesome, Rahul. I think there's a lot of things that we need to cover because you have covered a lot of things in these last many years. To all the students who is watching it, आप लोग अपने questions लिख लो, आप comment करते रहो. In the between, we'll try to pick your questions and answer those. But let me start with let me address the elephant in the room itself. So सबसे पहले Rahul, because I know you, and I have worked with Rahul in one of the companies. We have said one of the companies. We come from the same college, right? He's a very good friend, right? So कुछ चीजें interesting है जो I would like to pick it up and I would like to ask on behalf of the students. So Rahul completed his engineering from metallurgical branch, right? Many of the student here, Rahul, वो हमेशा ही कॉमन डाउट होता है स्टूडेंट्स का कि सर मैं मैकेनिकल से हूँ, मैं सिविल से हूँ, मैं तो इंजीनियर ही नहीं हूँ, मैं बीसीए कर रहा हूँ या फिर मैं बीकॉम कर रहा हूँ, एंड स्टिल आई वांट टू मेक इनटू द फील्ड ऑफ आईटी. इज इट पॉसिबल? क्या ये ट्रांजिशन प्रैक्टिकल है? Since you have done it yourself, I would like to ask you that what are your 2 cents on it? आप क्या सोचते हो? And what should be the mindset? क्या एक mindset होना चाहिए अगर आप एक non CS branch से आते हो and still you want to make it into the IT sector? How important is the mindset and how much is the role of the skills? तो आज की डेट में क्या relevant है? I would like to hear from you yourself. If you're okay, I'll start with a quick incident or anecdote that happened this year. और this year क्या last year, अब तो 2024 आ गया. So I went to my college, IIT BHU. वहाँ पे हम लोग हॉस्टल्स में घूम रहे थे. तो जो वार्डन थे उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं. तो मैंने बताया कि मैं अभी कैलिफोर्निया में हूँ और वहाँ पे मैं ये पेपैल की कंपनी में मैनेजर हूँ. तो उन्होंने पूछा आप कौन से ब्रांच पे थे, कहाँ रहते थे. वो रूम्स हमारे ब्रांच वाइज लोकेटेड होते थे. तो हम मेटा वाले सेक्शन में उनको लेके गए, मेटलर्जी वाले. तो वो मुझसे बोलते हैं कि अरे आप यूएस कैसे पहुंच गए. तो मैं समझ नहीं आया कि मैं इसको कॉम्प्लीमेंट लूं कि मैं क्या लूं. बट उससे ये जरूर दर्शा गया कि एक माइंडसेट अभी भी पहले की पीढ़ी का रह गया है कि एक ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन डिसाइडिंग वेयर यू लैंड एंड व्हाट डू यू डू. आई थिंक हमारा जो बैच था, विश्वमन आप और मैं एक ही बैच से आते हैं, वो शायद ट्रांजिशनरी पीरियड था जब हम इस चीज को डाइल्यूट कर रहे थे कि ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस के लिए. अभी लास्ट 5 years 6 years में इट हैज ऑल बिकम कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्किल सेट. जब मैं किसी को इंटरव्यू करता हूं एंड आई हायर अ लॉट, देयर आर ओनली 3 things आई लुक फॉर. पहला इज कैन दिस पर्सन आंसर द टेक्निकल क्वेश्चन दैट वी आर आस्किंग. और वो क्वेश्चन सेम है, वो किसी के लिए डिफर नहीं होते डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड. So if you can come and nail the interviews, which means you can impress the panel with the answers and your technical skill set, that seals the game for you. दो और चीजें हैं जो हम देखते हैं. पहला, is this person going to be a good team player? वहां पे communication skill set, your attitude, everything comes into play. वो एक important factor बनता है. और तीसरी चीज जो हम देखते हैं वो ये होता है कि मान लीजिए आपका इंटरव्यू 19-20 हुआ, लेकिन कैन दिस पर्सन लर्न? क्या वो अगले 3 महीने 6 महीने में टीम में आके सीख जाएगा? और जब हम उसको गाइड करेंगे, विल दैट पर्सन एक्सेप्ट? तो ये सारे ट्रेट्स हम लोग देख रहे होते हैं. रिज्यूमे में एक एजुकेशन का सेक्शन होता है जो शायद लास्ट पेज पे आता है आजकल. वहां तक तो शायद कोई पहुंचता भी नहीं है. आई नेवर लुक एट इट. तो एजुकेशन इज नॉट सुपर इम्पोर्टेंट एट द मोमेंट. तो हाँ, मेरा ट्रांजिशन वैसा ही हुआ. I get reminded of Meta when I go to college, but otherwise I think I've forgotten about it. It's all about skill set, staying relevant. Technology is changing at such a rapid pace. So keep learning, keep growing. That's the mantra. Awesome. So no, I think you are kind of consolidating. I always tell to my students कि आज की डेट में no matter which college you come from, no matter which branch you have, if you have the right skill set, the companies are pretty much open. और राहुल already at least 3-4 companies में already काम कर चुके हैं, and all big MNCs, right? Oracle, right? He was in Goldman Sachs, and he's right now working for PayPal. He's leading a team of engineers, not in India, in the US itself. So I think that in itself is a testament of a fact that कि सर अगर आपके अंदर right skill set है, what he was mentioning, right? I think you don't have to worry much around which background that you come from. Cool. So राहुल, एक बार थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में आप बता दो इसके साथ ही.
ये बात हमने पकड़ा, पर इसके बाद आपका जर्नी क्या हम्म था? आप कॉलेज में मेटा में थे एंड देन यू स्टार्टेड विद व्हिच कंपनी एंड देन हाउ डिड यू लैंडेड अप इन यूएस? बहुत सारे बच्चे ये जानने के लिए कोशिश कर रहे होंगे कि यूएस कैसे निकले. इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट हाउ टू गो टू यूएस, पुट दैट इनटू द चैट सेक्शन. आर यू गाइस आल्सो एक्साइटेड अबाउट यूएस में जाके जॉब करे, यूके में जाके जॉब करे? व्हाट आर योर क्वेश्चंस अराउंड दैट? पुट दैट इनटू चैट. विल टॉक अबाउट दैट वेरी क्विकली. हम्म अभी थोड़ा जान लेते हैं कि राहुल की जर्नी कैसी थी, किस किस कंपनी में उन्होंने काम करा, और पहला जो जॉब चेंज था, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर लिसनर्स आर फ्रेशर्स. तो हम्म आप कॉलेज में जब ऑरेकल की तैयारी कर रहे थे, क्या अलग कुछ तैयारी कर रहा था? क्या तैयारी कर रहा था? किस टाइप का प्रिपरेशन था? और मेटा से डायरेक्टली आईटी कंपनी में शिफ्ट जो एक रहा होगा हम्म आपका, वो कैसा था? वाज इट टफ? व्हाट इज इजी? वो वाला एक्सपीरियंस, इफ यू कैन रिकलेक्ट एंड शेयर इट विद अस. हम्म 13 साल पुरानी बातें होती है. लेट मी जग माई मेमोरी अगेन. हम्म. आई थिंक एक चीज जो मुझे बेनिफिट की थी, या मुझे पर्सनली लगता है कि ओरेकल में हम लोग क्यों गए, उस टाइम पे जैसा मैंने बोला, कुछ कंपनीज थी जो ब्रांच पे नहीं आती थी. अब तो वो बिल्कुल शिफ्ट हो गया है और किसी भी कंपनी को आपके ब्रांच और उससे मतलब नहीं है. उस टाइम पे कुछ कंपनी ऐसी थी, तो लकीली ओरेकल वाज वन ऑफ दोस कंपनीज. मेरे फेवर में व्हाट वर्कड आउट वाज कि आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ कोडिंग एंड रोबोटिक्स रिलेटेड कोडिंग. तो वो रोबोटिक्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे, उसमें बहुत कोडिंग होती थी. तो वहां से मैंने वो स्किल पकड़ी और काफी कोडिंग उस बेसिस पे करी. अपने कुछ प्रोजेक्ट्स थे मेटलर्जी के ही, जिसमें मैंने कंप्यूटर साइंस की कोडिंग करी और वो स्किल सेट यूज किया. तो दैट हेल्प मी इन द इंटरव्यूज. तो व्हेन इंटरव्यू हैपेंड, वहां पे आई वाज एबल टू कॉम्पीट अगेंस्ट सीए स्टूडेंट्स, क्योंकि वो एक बैकग्राउंड और कनेक्ट आ गया था. तो वहां से तो बस वो एक होता है कि यू नीड अ प्लेटफॉर्म टू लैंड. एक बार आप उस स्ट्रीम में घुस गए, उसके बाद इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड. तो वहां से जावा पढ़ना, सीक्वल पढ़ना, वो सारी चीजें बेसिक्स करते करते करते. और हाँ, देन इट वर्कड आउट. आई थिंक उसके बाद मुझे कभी ब्रांच का फैक्टर नहीं आया. योर क्वेश्चन अबाउट कमिंग टू यूएस, मेरा थोड़ा अनकन्वेंशनल जर्नी है. कन्वेंशनली तो काफी आसान तरीका है आज के लिए. आप यहाँ पे आके मास्टर्स कर लीजिए. मास्टर्स रिलेटिवली इजी है. उसके कुछ एग्जाम्स होते हैं, आपको वो क्रैक करने हैं. आपका कॉलेज का बैकग्राउंड सीवी वहाँ पे वर्क करता है. आपने किस टाइप के प्रोजेक्ट्स किए हैं, यहाँ पे एक प्रोफेसर ढूंढिए. तो उसका एक प्रोसेस है, हम उसमें जा सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द क्वेश्चन. बट एक दूसरा छोटा कोहोट ऐसे आता है कि इफ यू वर्किंग ऑन अ कंपनी इन इंडिया एंड देन यू ट्राई फॉर ऑप्शंस विद इन यूएस इन द सेम कंपनी. तो एमएनसीज और लार्जर कंपनीज के लिए इट वर्क्स आउट, विच इज व्हाट आई डिड. तो मैं यहाँ पे था. एक इंटरेस्टिंग ये था कि मैं 2017 के आसपास 2 महीने के प्रोजेक्ट के लिए यूएस आया था. तो मैं बैंगलोर में ही वर्क करता था, और 2 महीने के प्रोजेक्ट के लिए जब मैं यहाँ पे आया, तो मैंने यहाँ का वर्क कल्चर समझा. मुझे यहाँ पे समझ में आया कि हेडक्वार्टर्स में वर्क करने का क्या एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जहाँ पे आप हैं, और कैसी चीजें आपके लिए थोड़ी एक्सेलरेट हो जाती हैं. तो आई थिंक वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं रह गया कि दिस दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग. और फिर वापस आके मैंने अटेम्प्ट किया कि अच्छा, यूएस मूव करके देखते हैं. एंड थिंग्स वर्कड आउट फॉर मी. आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, राहुल. आई थिंक हम सभी ये जानना चाहेंगे that no, because you have experience working in India also, and you are right now working in US. And in fact, आपके पास तो और ज्यादा अच्छा एग्जांपल होगा because you have worked in a company, same company in the US and the same company in India itself. So how do you see the work culture difference? Uh, how things happens in India right now, and how the things happens at the global scale. If you would like to cite few differences which you find, I think that will give a lot of insight to a lot of the people to understand कि क्या फायदा या क्या नुकसान है. तो on the culture side की work culture कैसा है? Like how do you find it different from the India, the software companies that is there in the US, in the Silicon Valley? आई थिंक एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना कि इंडिया में जो आज हो रहा है या बाकी कंट्रीज में जो आज हो रहा है, यूएस वो एक ट्रेंड सेट करता है 5 साल पहले, 10 साल पहले. ऐसा एक फैक्टर होता है. तो आई थिंक उसके कुछ चीजें दिख जाती है, विच मीन्स कि आई वी एक्सपीरियंस थिंग्स हियर बिफोर इट बिकम्स एंड कम्स ओवर देयर. सो एक ट्रेंड पता चल जाता है, इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, वो एक फैक्टर पता चल जाता है. दूसरा, आई थिंक इट्स ऑलवेज हेल्पफुल टू वर्क नियर द हेडक्वार्टर्स, जहाँ पे डिसीजंस हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स वहां से ओरिजिनेट होते हैं, वहां से चीजें बन के आती हैं. तो वो एक हेल्प हो जाती है. इन टर्म्स ऑफ टेक स्केल, तो किस तरह के प्रोजेक्ट हो रहे हैं, आई थिंक अभी वो डिवाइड ऑलमोस्ट चला गया है. सो ऑल एंड वेरी गुड प्रोजेक्ट्स कम टू इंडिया. इंडिया का वर्कफोर्स और स्किल सेट इतना ज्यादा टैलेंटेड है. इंडिया की जो वैल्यू है वो इतनी हाई है अभी इंजीनियर्स की, और
वहाँ के रिसोर्सेज की कि वी आर लुक्ड इन अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव अभी। तो वो प्रोजेक्ट्स का डिवाइड शायद उतना ना हो, लेकिन एक हेडक्वार्टर्स के पास काम करने का डिवाइड अच्छा है, तो वो एक डिफरेंस आ जाता है। दूसरा मैंने बोला जो ट्रेंड्स हैं, क्या चीजें आने वाली हैं, अगला कहाँ शेप होता है, वो शायद यहाँ बहुत पहले पता चल जाता है, क्योंकि चीजें राइट यहाँ से इवॉल्व होके स्प्रेड आउट होती है, तो उसका एक एडवांटेज जरूर मिल जाता है। जैसे इसी को पकड़ लेते हैं कि अभी ब्रांच डाइल्यूट हो गई है, वो चीज यहाँ पे 5 साल पहले ऑलमोस्ट होना स्टार्ट हो गई थी। तो मैं जिस टीम को मैनेज करता हूँ, इनफैक्ट मेरी टीम में देयर इज अ पर्सन हु इज अ लॉयर टर्न्ड इंजीनियर, देयर इज वन मोर पर्सन इज अ फार मोर टर्न्ड इंजीनियर। तो लोग इतना एक्टिवली अपना करियर इतना लेट चेंज कर लेते हैं, दे 30 तो 35 लोग एंड दे आर लाइक यहाँ यार। पे तो इंडिया में लोग अभी ब्रांच चेंज के बारे में बस बातें कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट अ फार्मर हु इज Seriously, टर्न इनटू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आई थिंक इट्स लाइक दैट्स अ बिग at the चेंज या age of 36, 35 or 36, or super late. And not this person, I'm saying I know people who are at the age of 35 or 36 and they're like, hey, let me change my career and try software engineering now. तो राहुल, आई वुड लाइक टू लिटिल डीपर हियर कि अगर कोई मान लो, जैसा आप एग्जांपल ले, अ फार्मर एट द एज ऑफ 36 ही हैज डिसाइडेड दैट आई वांट टू मूव इनटू द फील्ड ऑफ इंटरनेट एंड बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. Like, is it because of a mindset? Is it because of they have a better facilities which you don't have in India right now? Like, what do you think is enabling them to do that? And let's say that someone sitting right now in India who's watching you from some nook and corner of India, uh, they also Hmm. want to convert that. क्या उनको करना चाहिए? Like, what is the right step? Let's say that someone is not into the IT field. Many of us might be not, because of multiple reasons we might not have been able to do Hmm. even the BTech, right? हम लोग टेक में नहीं Hmm. होंगे, but they are watching this, and they see that someone in the US is doing this, so why not I? Today is the age of internet. तो आप अगर कुछ बताओ कि क्या mindset होगा उस इंसान का, what all things that is there which is happening right now in US जो enable कर रही है इस टाइप के सेक्शन Hmm. के लोगों को भी ऊपर आके टेक में आने का. I think that will help with the people out here in India who's actually watching it. Hmm. सी दो चीजें जाती है, राइट? एक होता है आपका प्रिपरेशन, आप प्रिपेयर कैसे करोगे उस इन्वायरमेंट के लिए। हम्म दूसरा अपॉर्चुनिटीज। हम्म दोनों का बैरियर बहुत कम है यहाँ पे, दोनों की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। पहला मैंने बोला प्रिपरेशन, तो हम्म यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे इंस्टीट्यूट्स, कंपनीज हैं जो आपको फुल स्टैक या फिर आपके रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज को पढ़ाती हैं, हम्म सिखाती हैं। इनफैक्ट 6 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के कोर्सेज होते हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हम्म तो उसके थ्रू कोई भी अनट्रेन्ड अनलर्न्ड बंदा या हम्म पर्सन आके दे कैन गेट दैट स्किल सेट, so that becomes a very good thing कि there are opportunities to हम्म come and learn and go from scratch. The good thing is they are very industry focused. What they teach, what they educate in those courses are हम्म extremely oriented towards how to crack an interview, how to go and work in a MNC from the हम्म starting stage. So they are already trained by the time they come in. Second asset is हम्म opportunity, because companies do not differentiate on the basis of your experience slash your past education. Getting an interview invite becomes easier. Once you get an invite, हम्म then फिर it's all about your preparation stage पे आपने क्या सीखा, कितना ज़्यादा हम्म how diligently you work towards your skills, and then can you हम्म impress the interviewer. तो वो दो चीजें बैरियर कम है, in short. fair point. एक और चीज which you would like to discuss is that I believe because of the COVID, Hmm. when the world understood the concept of remote working, I think उसकी वजह से भी एक advantage मैं बोलूंगा, blessing in disguise. I understand that the COVID was bad for almost every one of us. The whole world was a victim to it. But I think especially for the people who are working in this field of the internet, I think एक global workforce वाला Hmm. concept निकल के आ रहा है, where you can take the remote jobs, right? Uh, So I would like to understand, how the companies in US are taking this remote jobs. A year back, everyone was talking about the remote work culture. But like, is that Hmm. remote a new normal today, or people are shifting back to the offline work culture right now? How it is happening in the, the companies in the US right now? I think different companies have different strategies, but one thing is that the remote is here to stay. I don't think it was Hmm. something temporary. It will Hmm. go towards hybrid most likely. Hmm. That's where my money is. But nevertheless, remote is definitely here to stay. How does it impact the world scenario? I think a lot of opportunities open up in non-US locations.
So Hmm. companies are hiring actively in India, in Shanghai. Hmm. They're setting up teams in the Asian markets, which they may not have done before. So those perspectives are becoming are more open, right? Hmm. दूसरा, I think you don't have to be in the metro city or in that location to start working anymore. जैसे मैं Hmm. बैंगलोर का एग्जांपल हूँ, तो यू डोंट हैव टू बी इन बैंगलोर, वहाँ पे आपको नहीं है। आप किसी Hmm. भी शहर से सेकंड टीयर थर्ड टीयर कहीं पे भी रह के आप वो सेम अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक इंजीनियर्स के लिए तो बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज इट हैज ओपन द लैंडस्केप वाइड एंड लाइक Hmm. वाइड आउट देयर। वेरी वैलिड पॉइंट। एक मैं क्वेश्चन अभी अपने लर्नर से उठा लेता हूँ। सो वन ऑफ द स्टूडेंट अनस इज सेइंग दैट आई एम परसुइंग बीसीए फ्रॉम इग्नू in third semester and learning day in day out in your full stack web development job assurance program course. Currently in doubt if I'll be able to crack good internship despite my degree. वो कह रहे हैं कि मैं इग्नू से डिग्री कर रहा हूँ तो क्या मैं जॉब कर पाऊंगा। आई थिंक दैट्स व्हाट राहुल आप भी बता रहे थे कि ऑलमोस्ट एवरी कंपनी टुडे इज हैज बिकम डिग्री एग्नोस्टिक। व्हाट दे लुक फॉर इज द राइट स्किल। तो अगर आपने लेट से ज्वाइन किया, राहुल ऑलरेडी बता रहे थे कि जब वो इंटरव्यू करते हैं, राइट, वो जब शॉर्टलिस्ट करते हैं तो शायद डिग्री इज द लास्ट थिंग दैट ही लुक्स इनटू द रिज्यूमे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या स्किल सेट सीखा है आपने, आपका राइट एटीट्यूड टू द वर्क है कि नहीं। अगर ये सारी चीजें, आई थिंक दैट्स द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। तो व्हाट यूड लाइक टू से राहुल, आपका कुछ एडिशनल सजेशन है इनको? मैं तो कहूंगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, स्किल सेट आपका सही है, तो आई थिंक यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि इग्नू से आपने करा है या फिर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से आप डिग्री ले रहे हाँ, एब्सोल्युटली। हे यार, थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। आई थिंक जो प्रोजेक्ट्स आपने किए, जो आप रिज्यूमे में डालेंगे, सीवी में डालेंगे, वो सबसे पहले दिख जाते हैं, सबसे ऊपर वही हो। आता है। तो बहुत अच्छे हम्म। प्रोजेक्ट्स कर लीजिए अभी, जब आप खुद की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। हम्म। तो उस पर फोकस करिए। मेक श्योर हम्म। वो प्रोजेक्ट्स में डेप्थ है, दे 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 हैव क्वालिटी, उसमें बहुत हम्म। सारे टेक्निकल स्किल्स यूज हुए हैं जो आप हाईलाइट करिए। तो वो जरूर अटेंशन कैच कर देगा हायरिंग कमिटी का। सो हम्म। प्रोजेक्ट पे फोकस करिए, आई थिंक इट शुड बी ओके। एक और चीज बात कर लेते हैं राहुल। आज के डेट में अगर मैं इंडियन इकोसिस्टम में देखूं मोस्टली, तो देयर इज अ स्टार्टअप बूम इज गोइंग अराउंड। एंड बिकॉज ऑफ द स्टार्टअप्स को दो चीज हमेशा मैं कहता हूँ, दे ऑलवेज लैक। वन इज द टाइम, अनदर इज रिसोर्सेज। And that's where they are typically looking for someone who can wear the different hats in different situation, right? जो फ्रंट एंड में भी काम कर ले, बैक एंड में भी काम कर ले, जरूरत पड़े तो डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन भी कर ले। एंड दैट्स वेयर द फुल स्टैक डेवलपर्स, the MERN Stack developers comes in a lot of demand. How is the demand of MERN Stack developers at the global scale? Like if I talk about, the Silicon Valley, अभी वहाँ पे MERN Stack developers का क्या demand चल रहा है? What is the buzz around the tech there? As you mentioned, थोड़ा Silicon Valley में चीजें थोड़ी पहले आ जाती है. So I would like to, understand from you that what is the buzz around the tech right now in the Silicon Valley, and your two cents around, the MERN Stack and the full stack development, the future in this year and the coming year ahead. गुड क्वेश्चन। आई थिंक इसके दो लेयर्स और डायमेंशन हो सकते हैं। पहला कि मर्न स्पेसिफिकली स्टे करेगा कि नहीं, मोंगो, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड। दूसरा, फुल स्टैक का क्या पर्सपेक्टिव है, उसको कैसे देखा जाता है। दूसरा वाला मैं पहले ले लेता हूँ, थोड़ा आसान है क्योंकि मैं खुद भी फुल स्टैक पे ही हूँ। आई थिंक ये बहुत ही प्रिविलेंट, एवर कंटिन्यूइंग टाइप का डोमेन है। इसका डिमांड कभी कम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास एक आइडिया हो सकता है, आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को जब आप यूजर के पास लेके जाओगे तो उसके लिए एक इंटरफेस चाहिए। वो इंटरफेस फ्रंट एंड है, वो इंटरफेस फुल स्टैक है। जो एप्लीकेशन हम बोलते हैं वो हमारे आइडिया को प्रेजेंट करने का तरीका है। तो किसी भी कंपनी का, किसी भी इंडिविजुअल का कोई भी आइडिया होगा तो सबसे पहले वो उसके लिए एक एप्लीकेशन ही बनाएगा। तो ये तो बहुत ही एवर डिमांडिंग काइंड ऑफ चीज है कि कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन आ जाए, एप्लीकेशन बनना तो नहीं बंद होगी। तो उससे उसकी रेलेवेंसी बहुत हाई होती है। बाकी सारे फील्ड्स अगर आप देखें तो हो सकता है वो एक एड ऑन हो जाए कि उसमें मैं एआई लगा दूं क्या, उसमें मैं बिग डेटा यूज कर लूं क्या। तो वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाता है, स्पेशली अगर इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं अच्छी नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन तो रहेगी। तो आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा फ्लरिशिंग एरिया है विच विल कंटिन्यू। इट्स टाइम एग्नोस्टिक। दूसरा, मर्न स्टैक स्टे करेगा कि नहीं, एब्सोल्युटली। एक्सप्रेस, रोड, नोड, रिएक्ट, दिस इज हेयर टू स्टे। आई थिंक इसका सबसे इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग पार्ट क्या है फुल स्टैक का, कि ये टेक्नोलॉजी स्टैक बहुत जल्दी चेंज होता है। एवरी 2 years 3 years नए टूल्स, नए फ्रेमवर्क इस कॉन्सेप्ट पे आते रहते हैं।
So if you decide to come in full stack, be prepared on a journey to continuously learn and keep yourself updated. Look at Java और Python और बाकी के languages, वो they have frameworks, but वो इतना जल्दी evolve नहीं होते. But यहाँ पे चीजें change होंगी. So MERN था, आजकल MERN Stack आ गया है जिसमें MongoDB gets replaced by Postgres. So Postgres is doing extremely well. उसमें वो shortcomings खत्म किए हैं. React is moving towards Next.js, which is a framework on top of React. तो वो चीजें pick कर रही हैं. The way you would write your CSS HTML, अब वो Tailwind से काफी ज्यादा चेंज हो गया है. तो you see, हर 2 या 3 साल में कुछ नया आएगा जो massively change करेगा. Companies have to change, evolve, remove their tech debt, rewrite the code base again. तो वो चलता रहेगा इस framework में. That's the only thing that one has to keep in mind. Right. I think one of the student has asked a very relevant question. शुभम ये पूछते हैं, मैं थोड़ा सा उसको रिफ्रेज कर देता हूँ कि आप जब कॉलेजेस में होते हो तो आपको एक तरीका होता है चीजों को सीखने का, आप किताबें लेते हो, चैप्टर बाय चैप्टर चीजें सीखते हो, बट व्हेन यू गो इन द इंडस्ट्री डोंट गेट मच टाइम. ठीक है, तो अगर एज अ फ्रेशर मैं चीज स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कंपनी में ऑलरेडी हो गया हूँ, मैं एक ऑलरेडी कंपनी में एक जॉब कर रहा हूँ, व्हाट इज अ मोर प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग दीज थिंग्स? अगर मुझे एक मॉडर्न डे का फुल स्टैक डेवलपर बनना है और मेरे पास टाइम नहीं है, I want to keep it practical, but as a fresher, I want to start from the scratch. What is a more practical way of learning? What is the industry way of learning concepts? What is that approach, which is different from how you do in the colleges? What is more industry-centric way of learning the concepts? उसका अगर कुछ आप अगर idea या फिर आप जो follow करते हैं, if you can share that learning with our students, I think they will get more insights on that. This is a good one, यार. I think दो चीजें आती हैं. पहला, what I try, I cannot say it's industry standard या नहीं, but I try to make applications on top of it. So एक mini application, एक छोटा project किसी भी concept पे अगर आप वो create करते हैं, so that helps you learn the whole domain much faster. पर चीजें तो समझ में आती है, उसका एक practical usage भी आ जाता है. तो वो मेरा एक attempt जरूर रहता है. जैसे मैं बोला था Next.js का 13 अभी 14 वर्जन आ गया, तो अब उसमें क्या नया अपडेट आया है वो सीखने के लिए मैं एक छोटा सा मॉड्यूल बना लूंगा, उसको चेंज कर लूंगा, इससे मुझे जल्दी समझ में आता है. पर एक बड़ा कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि लैंग्वेज फ्रेमवर्क तो बदलते रहेंगे, विच इज व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स और फंडामेंटल्स ऑफ इट. एक्सप्रेस वर्क करता कैसे है, Node.js का एक्चुअल बेनिफिट क्या है, अब उसके ऊपर रैपर जो भी आ जाए, इफ यू रियली अंडरस्टैंड ये चीज कैसे वर्क करती है, तो फिर बहुत ईजी हो जाता है टू टाइप थिंग्स टुगेदर. जैसे मैं MongoDB कह रहा था, MongoDB डॉक्यूमेंट बेस्ड है, अभी Postgres आ गया, वो SQL है, लेकिन डेटाबेस रूट लेवल पे वर्क कैसे करता है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, शार्डिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं. अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो जो चीजें इवॉल्व होती है वो पिक करना एक टाइम के बाद काफी आसान हो जाता है. तो लैंग्वेज का बैरियर नहीं रहता, सिंटैक्स का बैरियर नहीं रहता, फ्रेमवर्क का बैरियर नहीं रहता. तो उस पर फोकस करिए. आई थिंक देन you'll be able to grasp things much easier and faster. Awesome. दूसरा, कीप रीडिंग लॉट ऑफ इंडस्ट्री ब्लॉग्स, टेक ब्लॉग्स आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है. मीडियम हो गया, ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जिसके थ्रू हम इंडस्ट्री के एक्चुअल ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, वहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है. आई थिंक वो बहुत रेलिवेंट होता है, उससे आपको समझ में आता है कि प्रैक्टिकल तरीका क्या है कोई चीज बिल्ड करने का, और थियोरेटिकल क्या था. तो वो गैप कम हो जाता है. वेरी वैलिड पॉइंट. इस बात को मैं थोड़ा सा और रिटेरेट करूंगा सबके लिए. अनलाइक एनी अदर डोमेन, बाकी हर जगह आप अगर एक ट्रेडिशनल बुक्स को फॉलो करते हैं, दैट हेल्प्स. टेक में अगर आप बुक्स को फॉलो करेंगे तो इट माइट नॉट बी ऑफ ग्रेट हेल्प, बिकॉज बाय द टाइम द बुक गेट पब्लिश्ड एंड बाय द टाइम यू गेट अ कॉपी इन योर हैंड, शायद वो टेक ही चेंज हो गया हो. राइट. सो इफ यू हैव टू स्टे रेलिवेंट, आपको रेलिवेंट चीजों को पढ़ना होगा, एंड दैट्स व्हाई वेरी गुड सजेशन राहुल, आपने ही बोला. एक क्वेश्चन और मैं पिक करता हूँ, आई थिंक आपने उसको ऑलरेडी एक एग्जांपल से कवर करा है. हमारे साथ है एक विकास सिंह सर, कह रहे हैं कि ही हैव बीन टीचिंग in CSE branch in diploma engineering colleges for the last 12 years, and now he want to work in the field of IT as a software engineer. Can he make it? I think he is well placed, right? Rahul, would you like to help him? Sure. Hey Vikas, thanks for your question. Yeah, I think because आप already पढ़ा रहे हैं and you have that background, so this will definitely help you out. और जैसा विश्वा सर ऑलरेडी समझा रहे थे, बोल रहे थे, इट इज ऑल अबाउट कि आप अपने आप को पैकेज करके कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं इंटरव्यू पैनल के, और टू गेट अ सक्सेस चांस. फिर फोकस ऑन थिंग्स दैट द इंटरव्यू इज लुकिंग फॉर.
आई थिंक ये हमेशा एक डिवाइड रहता है कि मेरे पास क्या स्किल है और सामने वाले को क्या चाहिए, उसका मर्जर हम कैसे कर सकते हैं। तो आपका जो बैकग्राउंड है उससे आप वो रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स निकाल लीजिए, उससे वो रेलेवेंट अपने स्किल्स निकाल लीजिए जो आप प्रेजेंट करना चाहते हो, किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं, एंड देन इट विल बी ऑल अबाउट कि अपॉर्चुनिटी मिल गई, अब मैं इंटरव्यू से कैसे क्रैक करूँ। सो राइट। प्रिपेयर एंड प्रेजेंट योरसेल्फ। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जो मेरे ख्याल से काफी रेलिवेंट है। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल एआई बज क्या चल रहा है यूएस में। A few months back when I was there, in everywhere I was going, everyone was talking about the chat GPT. पर अभी हाल फिलहाल में तो बाढ़ आ चुका है, Gemini आ गया है, right? So what is the AI buzz which is happening right now in the Silicon Valley of the world? I would like to hear that. And follow up to that, like very common debate, will AI kill software developers, right? What are your 2 cents on that? ओके, दो क्वेश्चन थे, एक तो एआई पे सिलिकॉन वैली का क्या पर्सपेक्टिव है, और Hmm. दूसरा विल एआई स्टिक अराउंड फॉर अ व्हाइल। आई थिंक सिलिकॉन वैली का तो बहुत ज्यादा बेट है इस पे। आई थिंक एक तरीका Hmm. उसको देखने का ये होता है कि यहाँ के जो वीसीज होते हैं और Hmm. यहाँ के जो फंड रेजर्स होते हैं वो कहाँ पे अपना, वेयर आर दे बेटिंग देयर मनी। सो आई थिंक इन लास्ट ईयर अ लॉट ऑफ एआई startups and backed companies have got a lot of funding, which means at least the bet is there कि maybe one of them Hmm. will fly off. So वो तो है, buzz है और it is there for a good reason. Hmm. Will it stick or not is a good question. दूसरा क्वेश्चन आपको ये था कि क्या वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को किल करेगा। आई थिंक ये Hmm. बहुत ज्यादा फार फेच्ड है, अभी Hmm. क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता। Hmm. बट इफ आई वर टू पुट माई मनी, आई डोंट थिंक, आई एब्सोल्युटली डू नॉट थिंक कि दिस स्किल सेट विल गो अवे। इसका आंसर मैं दो Hmm. तरीके से कर देता हूँ। Hmm. पहला तो ये कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है, दे जस्ट Hmm. डोंट ब्रिंग द कोडिंग पार्ट टू द गेम। वो Hmm. सिर्फ अपनी टेक्निकल स्किल सेट लेके नहीं आता, जैसा Hmm. आप पहले थोड़ा समझा रहे थे। एक Hmm. और मल्टीपल हैट्स दे वेयर, Hmm. दे वेयर अ हैट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर, दे वेयर हैट ऑफ Hmm. डिजाइनर, दे वेयर Hmm. हैट ऑफ आर्किटेक्ट, दे वेयर हैट ऑफ Hmm. टेक लीड। Hmm. उनको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। जब Hmm. हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम बहुत सारी टीम से बात करते हैं, उनको क्रॉस Hmm. फंक्शनल टीम डोमेन्स बोलते हैं। उनके पास हमें Hmm. अपना आइडिया पिच करना है, उनसे टाइम लेना है, उनके प्रोजेक्ट से मर्ज करना है। तो ये Hmm. सारी इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स हैं विच आर ह्यूमेन, वो बहुत नेचुरल स्किल्स नहीं है जो आप किसी एल्गोरिथम में डाल दें। तो मुझे Hmm. लगता है वो सारा जो फैक्टर है ना, वो 40-50% या एक लार्जर शेयर कंट्रीब्यूट करता है। तो Hmm. एआई में अभी वो तो नहीं आया है, और आई होप आए भी ना, Hmm. सो दैट इट Hmm. स्टेज वेरी वेरी ह्यूमेन। तो Hmm. आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि हम बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट करते हैं, कोडिंग सिर्फ उसका एक पार्ट है, तो वो कभी रिप्लेस नहीं हो सकता। Hmm. और दूसरा क्वेश्चन जो मुझे बहुत आता है कि चैट जीपीटी चलेगा कि नहीं और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अब आप कोड उससे लिख सकते हो। अ, अभी तक तो इंडस्ट्री का इसी है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना डेटा नहीं देना चाहती, तो अब चैट जीपीटी पे Hmm. अपने कंपनी का तो क्वेश्चन वहां जाके पूछोगे नहीं। तो अनलेस दे क्रिएट अ Hmm. प्रोडक्ट लाइक दैट, मे बी, मे बी दैट स्टिक्स। जैसे अभी गिटहब को Hmm. पायलट वीएस कोड के अंदर इंटीग्रेटेड है, बट Hmm. अनलेस दे मेक इट एंटरप्राइज रेडी, दे आर एबल टू Hmm. सेल इट टू द कंपनीज। Hmm. So at the moment, at this stage, it is iffy. It has not got that level of adoption. Hmm. Very fair points. I'll just pick one more. Deepak Prasad hai, and he's asking a question. थोड़ा सा मैं इसको rephrase भी करूंगा. He's trying to say that what do you think about working in agencies who build small products like web app, mobile apps as a fresher Hmm. and so as an experience in the future for switching over other company? I think so थोड़ा सा और मैं generalize कर दूं तो ये कह रहे हैं Hmm. कि मैं कॉलेज में हूँ, तो is it wise कि मैं छोटे कंपनी में काम कर लूं? Will it get me the experience? या फिर मैं सिर्फ पढ़ाई करता रहूं और काम ना करूं और finally I look for a big company? What is your take on it, राहुल? आप क्या इसको सजेस्ट करेंगे? ये अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक experience helps. Again, I feel that from wherever you can get that gem of a project, जब आप स्विच कर रहे हो, आपके सामने बस एक सीवी है, एक रिज्यूमे है जो आपको सामने वाले को प्रेजेंट कर रहे हैं। उसने आपका इंटरव्यू नहीं किया, उसने आपसे कुछ पूछा नहीं, उसने आपको देखा नहीं है। तो वो हम्म. बस इस बेसिस पे देख रहा है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस का जो प्रोजेक्ट है वो कितना वर्दी है। क्या हम्म. वो एक छोटे लेवल का प्रोजेक्ट है, जो शायद बहुत कॉमनली कोई भी कर सकता है, या उसमें एक डेप्थ है, हम्म. उसमें कुछ चैलेंज था, तो वो पढ़ के हम्म. निकल के आता है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर मैं इसी तरह से करूंगा कि इफ
जिस एजेंसी की आप बात कर रहे हैं वहां पे आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है कि इस टाइप का वर्दी प्रोजेक्ट, एक जेम ऑफ अ प्रोजेक्ट आप कर पा रहे हो? एब्सोल्युटली। अगर वो प्रोजेक्ट आप खुद से कर सकते हो देन ऑल्सो इट्स ओके, बट करेक्ट एक्सपीरियंस है करेक्ट ना, राइट अपॉर्चुनिटीज एब्सोल्युटली और वो गेम बढ़ जाता है। आई ऑल्सो सेकंड वट एवर राहुल जस्ट टॉक्ड अबाउट, है ना। आज की डेट में आई फील व्हेन आई से दैट डिग्री को इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, तो किसी चीज की तो आप वैल्यू दोगे, एंड दैट द एंटायर वैल्यू इज गिवन टू द एक्सपीरियंस दैट यू ब्रिंग टू द टेबल, कितना स्किल सेट आप लेके आते हैं। एंड नथिंग इज बेटर देन एक्चुअली वर्किंग ऑन द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, राइट। एक हम्म, पेट प्रोजेक्ट जो आप घर में बैठ के कोड करके करते हो, उसका देयर इज नो कंपैरिजन विद वन व्हिच यू सॉल्व विद द रियल वर्ल्ड डेटा। तो आई बिलीव अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन अ कॉलेज, इवन इफ इट इज कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल फर्म, बट इफ यू फील द प्रोजेक्ट इज वर्थ एनफ, आई थिंक वी शुड डेफिनेटली डू इट। आई विल टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चन है सुमित का, ठीक है। हम्म, अगेन ये अराउंड डिग्रीज का ही है। ये कह रहे हैं कि मैं बीसीए फाइनल ईयर में हूँ, और इसके बाद मेरे पास दो ऑप्शंस है, क्या मैं एमसीए करूं या क्या मैं अपने स्किल्स पे काम करूं, और इसके बाद ही आई कैन स्टिल मेक आई कैन गेट स्टार्टेड इन द जॉब सेक्टर्स। Is the world of software open enough to take me just after BCA? Because conventionally लोग बीसीए को थोड़ा इनकम्प्लीट डिग्री मानते हैं, उनको लगता है कि बीसीए के बाद मैं अच्छा। एमसीए करूंगा तभी मुझे जॉब मिलेगी। सो हाउ इज द करंट जॉब्स landscape in India? Can he take a risk of dropping out after BCA and just focus on skill and get the job? हम्म, ओके। हे सुमित, तो विश्व इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं कि मैं थोड़ा यूएस का बता देता हूँ, क्योंकि इंडिया हम्म के डिग्रियों हम्म से मैं शायद उतना वाकिफ नहीं रहा। श्योर और श्योर आप श्योर, आप ये उसको आप ट्रांसलेट बताइए, कर और देना। उसको मैं थोड़ा इंडिया में उसको मैं कर हाँ, दूंगा। हाँ, आप एक ग्लोबल सिनेरियो के टर्म्स अगर आप बताएं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में अभी क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आप उसको बताइए। एंड आई थिंक मोर और लेस आई थिंक इंडिया भी उसको फॉलो कर रहा है आज के डेट में, तो विल आई कवर फ्रॉम द इंडिया कॉन्टेक्स्ट। और जस्ट टू ऐड, आई थिंक फर्स्ट वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड कुछ नहीं रहा, इंडिया इज राइट अप देयर, सो या I'll make a comment there. आई थिंक यहाँ पे क्लियरली डिग्री का रेलेवेंस तो कम है। uh, दो, जैसे मैंने बोला कि एक इजी तरीका यहाँ पे आने का है कि यहाँ से लोग एमटेक कर लेते हैं, विच इज दी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, और बीटेक यूजुअली इंडिया से रहता है। बट lot of engineers here, they will probably just have a BTech degree from, or a comparative computer science degree from one of the institutes here, and then they start working. I think एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन होगा जिसके पास एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नहीं होगी, जैसे बहुत टाइम तक मेरे पास भी नहीं थी। and it happened, and I know हमारे फील्ड में a lot of people that I work with at a very very senior level, they may have had only a uh, undergrad degree. Of course, बाद में as you skill up, you get into leadership, management, और आपके डायमेंशन बढ़ाने होते हैं, तो वहां पे फिर आप उसके रेलेवेंस की एक पढ़ाई करते हैं, बट नॉट बिकॉज की टेक स्किल के लिए आपको हेल्प करेगा। तो डिग्री उतनी ही चाहिए जितनी आपके वर्क के लिए डायरेक्टली को रिलेट हो और उसका एक एप्लीकेशन हो। अगर डिग्री बी और सी का एप्लीकेशन डायरेक्टली नहीं आ रहा है, वो एप्लीकेशन आपको डायरेक्टली वहां काम करके आ जाता है, तो फिर उसका रेलेवेंस खत्म हो जाता है। अब I'll take your help to translate if this was on point or not. तो वेरी नाइस। सो आई थिंक टिपिकली आई फील कि हमारा जो भी टेक इकोसिस्टम है इंडिया में, इट्स प्रीटी मच वाइब्रेंट, and I'm very happy to announce here that typically the gap which was there in the past, say like 10 years from the now, I think that gap has kind of diminished. So ये जो skill, giving more priority to the skill than the degrees, I think almost, see, try to think from the perspective कि कोई भी अगर आपको जॉब दे रहा है, पैसे दे रहा है, सैलरी दे रहा है, no one will give you salary on the face value कि आप कौन से कॉलेज से आ रहे हैं या फिर आपने कौन सी डिग्री ली है। अगर आपको काम करना आता है, अगर आपको कंपनी एक्स अमाउंट दे रही है, you can make 10x out of it, that it makes sense for the company to give you the salary every month. तो आज की डेट में स्किल इज इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास है देन यू गेट इट। फॉर अ ट्रैक रिकॉर्ड, हमारे पीडब्ल्यू स्किल्स के बैचेस में जो फुल स्टैक के बैचेस पिछले निकले हैं, उसमें कई सारे बच्चे जो बीसीए के थे, जिन्होंने एमसीए नहीं करा था, दे आर आल्सो डूइंग ग्रेट जॉब। एक टेस्टिमोनी मैंने हाल ही में रिकॉर्ड करा है, इट्स गोइंग सून बी ऑन द यूट्यूब। वो 12 लाख का जॉब कर रहे हैं आफ्टर जस्ट डूइंग बीसीए, नॉट इवन डूइंग द एमसीए। सो द आंसर टू इज यस, बट यस, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्कआउट, जैसा राहुल कह रहे थे, राइट, you have to be practical, you have to have some projects to show in the interview कि आपने भले ही 3 साल बीसीए करा है, पर आपने इसका पूरा यूटिलाइजेशन करा है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, you have the skill set, you have built the projects, and I think if you have that, then I think you don't need to have any more degrees. I think BCA should be more than enough. Cool है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो स्कूल में ही हैं और वो आपका ये देख रहे हैं, तो आई फील पीपल आर सो अवेयर दीज डेज
एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा राहुल आपसे, है ना। हम्म। जब हमने ये चालू करा था, आई थिंक 2011 के आसपास, टेक, और अभी, अच्छा। what is the difference that you see, and I'll talk about in three terms, maybe in the terms of हम्म। pace of change, to the type of the development or type of the work that we are doing, हम्म। and three, how do you see it in the next 10 years? So like if I go back 10 years, like 11, 12, 13, 11, 12, 13, हम्म। now and 10 years from the now, how do you see these two things, going away? Like, what are your 2 cents on that? So pace of work and second was type of work, if I got that correct. Uh, yeah, the first one was the pace of work, and the pace of the technology, right? And the kind of the work that we were doing that time, kind of software that we are developing, in 11, हम्म। 12, and kind of the software that we are building these days, right? What is the difference that has come up in that? हम्म। एक डिफरेंस तो क्लियरली मुझे अब दिख जाता है। पहले हम लोग बहुत छोटे मॉड्यूल या एक सेक्शन पे काम करते थे। जैसे मैं बैकएंड इंजीनियर Hmm. था, तो मैं वो Hmm. बैकएंड में वो सीक्वल क्वेरीज लिख रहा होता था या फिर एक मॉड्यूल Hmm. क्रिएट कर रहा होता था। Hmm. और अब ये एक्सपेक्टेशन लार्जली चेंज होती है, विच इज Hmm. यू हैव टू बी मल्टी डायमेंशनल। तो Hmm. यू आर टॉकिंग अबाउट फुल स्टैक, बट उसके अगर लेयर्स को पकड़ Hmm. लें तो उसके अंदर एक Hmm. फ्रंट एंड का पोर्शन है, माइक्रो सर्विसेज हैं, दूसरे सर्विस से कैसे Hmm. इंटरेक्ट करना है, आपको डेटाबेस Hmm. कहाँ पे लोकेटेड है, उसका डेटा कैसे आ रहा है, उसमें बग आया, अगर एक बग Hmm. आएगा तो इट डजंट गेट लिमिटेड टू कि मेरा तो ये स्कोप था, इट इज Hmm. ट्रांजिशनरी इन नेचर। तो Hmm. how can you travel the entire depth of the code base right Hmm. from all the layers, that becomes important। तो वो एक चीज मुझे जरूर दिखता है कि Hmm. शायद हम पहले एक पोर्शन पे काम कर रहे थे, अब वो एक्सपेक्टेशन ही Hmm. नहीं है कि आपको एक पोर्शन पे काम Hmm. करना है। एक्सपेक्टेशन वहां से स्टार्ट हो रही है कि Hmm. you have to know all the interconnected services applications uh, Hmm. which are distributed, और वो कैसे वर्क कर रही है। तो वो आई थिंक वहाँ पे फुल स्टैक का एक एम्पावरमेंट आ जाता है। इट जस्ट हेल्प्स टू नो Hmm. ऑल द टेक्नोलॉजी स्टैक वेरी वेल। Hmm. पेस ऑफ Hmm. टेक्नोलॉजी तो ऑफ कोर्स इट विल कंटिन्यूअसली चेंज एंड इवॉल्व। आई थिंक चीजों का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, सो Hmm. स्पेशली टेक्नोलॉजी में। so the kind of framework, the kind of things that are coming in। मैं अगेन वही Hmm. एग्जांपल लेता हूँ। 2011 में अगर हम पढ़ रहे थे तो हम शायद उन्हीं चीजों को पढ़ रहे थे जो पिछले 10 साल से रेलेवेंट थी। 10, 15, 20, आप सीक्वल ले लो, Hmm. जावा ले लो, हम लोग Hmm. डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ा करते थे। हाँ, Hmm. तो वो Hmm. सारी चीजें चली आ रही थी। ऐसा नहीं है उनका Hmm. रेलेवेंस अब नहीं है, बट जस्ट लुक एट Hmm. द काइंड ऑफ थिंग्स वन हैज टू लर्न इन लास्ट Hmm. 4 or 5 years। Hmm. अबाउट 2010-15 के आसपास बिग डेटा केम इनटू प्रोमिनेंस, Hmm. तो हम Hmm. वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। Hmm. ब्लॉकचेन आया, Hmm. क्रिप्टो आया, अब Hmm. एआई आ गया। Hmm. एआई मतलब पूरा मशीन लर्निंग का लैंडस्केप इंपॉर्टेंट हो गया। तो जैसे हर 2 या 3 साल में एक बहुत अपराइज आता है किसी टेक्नोलॉजी Hmm. या किसी लैंग्वेज या फ्रेमवर्क का, जो बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाता है। तो ये चीजें बहुत जल्दी शूट अप कर रही हैं कंपेयर टू Hmm. 10 years पहले, जहाँ पे वो थोड़ा सा स्टैटिक था। तो Hmm. वही है जिसको हम बजवर्ड बोल रहे हैं, बट टेक्निकली इट स्टेज Hmm. फॉर कपल ऑफ इयर्स, और उसको पढ़ना सीखना इंपॉर्टेंट हो जाता है टू बिकम रेलेवेंट। यू कैन नॉट लीव इट एंड लेट गो कि मैं तो इस पे काम करता हूँ तो आई विल नॉट केयर अबाउट दी Right. दी एआई थिंग। Perfect. There are few more questions. I think we are running out of time, but दो तीन क्वेश्चन और मैं ओके। लेता हूँ, फिर because Rahul has to, it's morning time for him and he has to leave for the office, so we cannot hold him for long. एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, आई थिंक ये रिपीटेड है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं करी है, ये बायोलॉजी स्ट्रीम से आते हैं, क्या ये स्टिल मेक कर सकते हैं? आई थिंक हमने पूरे कन्वर्सेशन के अराउंड वी हैव टेकन मल्टीपल एग्जांपल्स टू इन्फोर्स कि हाँ सर आप कर सकते हो। आपको बस एक शिद्दत चाहिए, यू शुड नीड टू हैव अ डिजायर, और फिर आपको स्किल सीखने, एंड इफ यू हैव दैट, no matter which branch or which skill set that you have in the past, if you have that skill set you can make it। तो ये मैंने आपके यहाँ पे राहुल उसको आंसर कर दिया, बिकॉज कई दफा इसको आंसर कर चुके हो। ठीक है। दो क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग आ रहा है, एक ये आ रहा है कि अगर मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ तो what should I learn next? Considering the technology trends, should I invest my time in learning data science, or should I learn, the distributed way of learning things? For example, the crypto side of that, right? Blockchain, right? So what should I do next to keep myself upskilled in the coming years? So, like, what do you think, Rahul? If someone is already a full stack developer, how, in which direction he should move to further upskill himself? हाँ, इसको मैं इस तरह से लूंगा कि किसी भी टाइम पे आपको दो चीजें चाहिए होती है, एक ब्रेथ ऑफ नॉलेज और एक डेप्थ ऑफ नॉलेज। ब्रेथ आती है बहुत सारी अलग अलग चीजों को थोड़ा थोड़ा जानकर, क्योंकि
आपको उसका एप्लीकेशन आएगा। तो जैसे मैंने बोला, मैं फुल स्टैक डेवलपर मैं खुद भी हूँ, बट आई कीप लर्निंग अबाउट डेटा साइंस, एआई, क्रिप्टो। जब शूट हुआ बिग डेटा कैसे वर्क करता है, वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस भी है। तो एक ब्रेथ हमेशा हेल्प करती है। दूसरा डेप्थ आता है। तो इवन व्हेन आई से कि मैं फुल स्टैक मुझे समझ में आता है, बट आई नो कि उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। थोड़ा सा आपने टच किया डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स अपने आप में एक 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 बाइबल है, उसमें आप कितना भी डेप्थ में जा सकते हैं। तो वो दोनों का बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फुल स्टैक पे आप डेप्थ में जाते जाइए और समझते जाइए फंडामेंटल ग्राउंड लेवल पे कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें आ रही हैं, उसमें अपनी पकड़ बहुत स्ट्रांग कर लीजिए। बट डू नॉट लीव द ब्रेथ पार्ट, वो आपको रिलेवेंट रखेगी। और जो डेप्थ वाला पार्ट है वो आपको एक्सेल करने में हेल्प करेगा, आप बहुत जल्दी राइज अप करेंगे। तो इट्स अ बैलेंस। फेयर पॉइंट। क्विकली एक दूसरा क्वेश्चन में ले लेता हूँ। व्हाट डू यू थिंक, यूएस में जो आजकल इंटरव्यूज होते हैं उसमें डीए से ज्यादा पूछते हैं या फिर सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं? और इन दोनों में से कौन सा पिक करना चाहिए? आई थिंक कई सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, सिस्टम डिजाइन और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। व्हाट आर योर टेक ऑन दैट राउंड? अच्छा, मैं यहाँ पे क्या होता है वो बता देता हूँ। डू नॉट मेक दैट मैच हाँ, थोड़ा चलता है। I think what is happening in the US is happening here also. तो but I think you can comment more of there. I think सारी चीजें I think similar ही आई थिंक replicate हो रही है आज की डेट में टेक के लिए एटलीस्ट। इंटरव्यूज एक जरिया है पता करने का कि जब आप जॉब पे आएंगे डे वन से, तो हाउ विल यू एग्जीक्यूट एंड बिहेव योरसेल्फ। हम्म जब वो चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आपको आएंगे तो उसको फेस कैसे करेंगे। तो आई थिंक इंटरव्यूज काफी ज्यादा उस तरह से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो थियोरेटिकल कम हो गए, प्रैक्टिकल ज्यादा हो गए। तो अगर हम डीएसए और सिस्टम डिजाइन को ही बैलेंस कर लें, उसको एक लेंस पे देखें, तो एक काफी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है और एक प्रैक्टिकल हम्म कॉन्सेप्ट है। तो हम्म रादर देन सेइंग ये पूछा जाता है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत कंपनी एग्नोस्टिक क्वेश्चन हो गया, मैं ये बोल हम्म सकता हूँ कि थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पे है। तो बिहेवियरल हम्म बहुत ज्यादा होगा और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे जो हम्म आपकी हेल्प करेंगे डे वन से। तो वो गेज हम्म करने की कोशिश की जाती है। हाउ डू यू आंसर दैट हम्म क्वेश्चन? नहीं, absolutely correct. I think it's not like choosing one or the other. DSA helps you write the code more efficiently, जो कि आज की डेट में सबको चाहिए. Everyone is talking about data, huge amount of data, so storage और कंप्यूटेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो यू नीड टू हैव द डीएसए का मास्टरी. दैट्स व्हाई ऑलमोस्ट एवरी कंपनी आस्क यू. बट कुछ लोग क्या होते हैं ना, रट के चले जाते हैं, geeks फॉर geeks, राइट. एंड देन द कंपनी शुड आल्सो बी अवेयर कि उनको आगे सिर्फ कोडिंग तो करवानी नहीं है. अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू बिल्ड एप्लीकेशन, राइट? यू हैव टू बिल्ड एप्लीकेशन, बिल्ड सॉफ्टवेयर सो दैट कंपनीज कैन मेक मनी एंड गिव यू द सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ. So for that, you should know how to build application, how to bring the components together, how will they communicate, what are the protocols that is used, how do you scale systems out. And that's why every company today is also putting some kind of rounds around the system design. So I believe choose one of these two is not the right way of doing it. I think you'll have to master both of them if you want to crack any good company. Perfect. So with this, I think there's lots of questions coming. I think we'll keep on flowing in, but we'll take a pause here. Thanks, Rahul, for joining us today. I know it was too early for you in the morning to join us. Really appreciate that you took time for us. One final closing statement. If you have to suggest all these budding engineers, mostly of them are fresh, either early in the college or they're in the the first, second, or third year of their professional world. If anything that you can devise, advise from your own career, the mistakes or the good thing that you did to these folks, I think that will be helpful. And that's how we close So it. thank you for having me. It was great fun discussing about these things. क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि मेरा बैकग्राउंड ये है, मुझे स्विच करना है, तो मैं करूँ कि नहीं। तो Hmm. मैं उसी पे क्लोज कर Hmm. देता हूँ Hmm. कि आपके पास क्या नहीं है और आपका पास्ट क्या है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, उस पर फोकस करके और Right. सोच के क्या ही करना। आपके Hmm. पास जो है वो यहाँ से आप कैसे अपना को ट्रांजेक्शन करते हैं, क्या चीजें पकड़ते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो क्या नहीं है उसको भूल जाइए, क्या है उस पर कोशिश करिए। और दूसरा, एक रिस्क लेने में क्या जाता है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, ये करियर रिस्क है, ये एक स्विच है, एक चेंज है, शायद आप सोच रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो वो एक सेइंग है ना जो बोले जाते हैं कि कुछ नहीं होगा तजुर्बा होगा। तो आप सीखेंगे जरूर बहुत कुछ। Hmm. और Right. दूसरा, इंडस्ट्री का माइंडसेट चेंज हो गया है, अब वो डाइल्यूट हो रहा है इन सब चीज़ों को लेके। तो इट्स अ सैक ऑफ बैग। उस बैग में आप बहुत सारे स्किल्स, बहुत सारा टैलेंट भरते जाइए, Hmm. रेलिवेंट चीज़ें डालते जाइए, वो फिर ज़रूर दिखेगा एक ना एक दिन सामने वाले को। Very nice. Perfect, Rahul. I think every good thing comes to an end. So we have to close this. It was really enlightening. I think many of the students would have learned a lot. If you want to talk more,
आप यहाँ पे comment कर सकते हो अपने question. Our team will make sure that they answer that. You can also reach out to our social media handle. You can reach out to Rahul over the LinkedIn. Follow him. Follow the great work that he's doing. You can also message him, if he accepts your request. Right, and keep on learning. I think skilling is the way. It's the only true North Star metrics which every company is looking for. So have the right skills. Don't doubt yourself. Keep on learning, keep on skilling, and to make 2024 your own year. है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में. With that, thank you everyone. Have a good night, good day. Thank you Rahul for being here. It was Thank awesome you. talking to you. Same here.